Hello scholars, welcome to today's session. This is Aanchal, your SST teacher, and we are taking up SST for class 7. This is chapter number 8 of history, that is religious beliefs, right? So हम बात करेंगे medieval period में जो religious beliefs prevalent थे उनके बारे में. So children, we will be talking about the Sufi movement, the Bhakti movement, and also Kabir Das and Guru Nanak Dev. So children, this is the picture of Sufi Basant celebrated in spring season, right? Basant होती है spring season के onset पे celebrate की जाती है. Now this is the picture of Sufi Basant. Can you name the place where it is celebrated? Can you find out the name of this place? Yes, it is Nizamuddin Aulia Dargah, right? So in the early medieval period, two parallel movements in Hinduism and Islam, the Bhakti and Sufi movements emerged in India. तो अगर हम medieval period की शुरुआती टाइम की बात करें तो हिंदुइज्म में भी और इस्लाम में दोनों में एक साथ सूफी मूवमेंट आई इस्लाम में और भक्ति मूवमेंट हिंदुइज्म में इमर्ज हुई, उभर कर आई, which reached their peak in the 15th and 16th century, जिनको जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई 15th और 16th सेंचुरीज में इस्लामिक थी सूफी मूवमेंट एंड हिंदुइज्म में भक्ति मूवमेंट बहुत पॉपुलर हुई. द रूट्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट कैन बी फाउंड इन द उपनिषद्स, भगवद गीता एंड भगवत पुराण. इसके अंदर आपको भक्ति मूवमेंट की रूट्स नज़र आती हैं. आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द टर्किश रूल इन इंडिया, many Sufi saints settled here. So Turkish rule के establishment के बाद काफ़ी जो सूफी saints थे वो इंडिया में आकर settle हो गए. The earliest and the most important Sufi saint was Sheikh Moinuddin Chishti, right? So सबसे पहले जो सूफी saint थे वो थे Sheikh Moinuddin Chishti, who made Ajmer his home during the reign of Prithviraj Chauhan, जिन्होंने अजमेर को अपना घर बनाया. किसके शासनकाल के टाइम आए थे वो? पृथ्वीराज चौहान के टाइम पर. Both these movements prospered without the occurrence of any communal conflict. तो दोनों movements parallelly emerge हो रही थी, parallelly popular हो रही थी. और इसकी अच्छी बात ये थी कि कोई भी कम्युनिटी के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं था. दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था. On the contrary, both contributed and influenced the religious ideas and practices of one another. दोनों ही जो movements थी, दोनों communities एक दूसरे की movements को support कर रही थी, influence कर रही थी. These movements preached simple values in the language of the masses. ये दोनों movements जो थी ये आम जनता की language में, बहुत ही simple language में लोगों को preach कर रही थी, teachings थी उनकी, without relying on political patronage or being adversely affected by political developments. Political patronage means support of any political parties, right? So किसी भी political चीज़ से वो effect ना होकर वो दोनों जो movements थी दोनों community में बहुत parallelly ये grow कर रहे थे, कोई problem नहीं थी और politics का इस पर कोई असर या influence नहीं था. Now children, let's talk about the Sufi movement in detail. Sufism came to India before the establishment of the Delhi Sultanate. So Delhi Sultanate के establishment से पहले ही Sufis India आ चुके थे. A large group of Sufis from different Islamic countries migrated to India and established themselves in different parts. तो बहुत सारे Sufis, large group of Sufis जो थे वो Islamic countries से India में migrate कर चुके थे और यहाँ पर settle हो गए थे. Sufism is a common term used for Islamic mysticism. Islamic mysticism means mysticism होता है भगवान के करीब जाना through prayers, meditation and all, right? So भगवान के पास भगवान की उनका ध्यान लगाना. Islamic mysticism हो गया Islamic rules के according भगवान के nearness पाना, right? So the word Sufi is derived either from the word Suf, which refers to the rough woolen cloth worn by the Sufi मिस्टिक्स. तो ये जो सूफी वर्ड है ये या तो वर्ड सूफ से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है जो सूफी मिस्टिक्स होते हैं वो एक रफ वूलन क्लॉथ पहनते हैं, या तो उसमें से डिराइव किया गया है, या फिर साफिया विच मीन्स प्योरिटी. साफिया का मतलब होता है प्योरिटी. द सूफीज एक्सेप्टेड द प्रॉफिटहुड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद एंड द अथॉरिटी ऑफ द कुरान. सो प्रॉफिट्स क्या होते हैं? They are believed to be messengers of God. Now prophethood is a concept where जो prophets होते हैं
वो गॉड के जो मैसेजेस हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं. सो दिस इज़ प्रॉफिटहुड. तो सूफीज़ जो थे उन्होंने प्रॉफिटहुड एक्सेप्ट किया था ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, एंड वो कुरान के जो टीचिंग्स थे उसके अकॉर्डिंग चलते थे. दे हैड एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ कुरान. These are Sufi devotees. Now, over a period of time, the movement incorporated many ideas and practices of different religions, right? जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो ये जो सूफी मूवमेंट थी इन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस जो थी जो दूसरे रिलीजन्स की थी वो भी अपने मूवमेंट में शामिल की, इनकॉर्पोरेट की. The doctrines of Sufism emphasize that God is unity behind all plurality and the reality behind all phenomena, right? So doctrines means जो teachings होती हैं. So teachings of Sufism किस पे stress देती थी, किस पर emphasize करती थी? That God is unity behind all plurality. मतलब जितनी भी चीज़ें हमें different दिखती हैं but they are all connected by God and the reality behind all phenomena. यानी जो God हैं, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, God is the reason behind all those phenomena, all those experiences. The Sufis had twofold objective. उनके दो objectives थे. Firstly, it was spiritual development of self, अपनी spiritual development, and then the service to humanity. Humanity की service उनके दो ये main goals थे. Now let's talk about the Sufi practices and organization. The Sufis mostly spoke the language of the people and gave importance to a fusion of different cultural traditions, right? जो सूफीज़ थे उनकी लैंग्वेज जो थी वो बहुत सिंपल थी, जो आम जनता के अकॉर्डिंग थी, उनको आसानी से समझ आती थी. एंड दे गेव इम्पोर्टेंस टू अ फ्यूजन ऑफ डिफरेंट कल्चरल ट्रेडिशंस. डिफरेंट कल्चरल ट्रेडिशंस जो थे उन सब का मिक्सचर था जो उनकी मूवमेंट की टीचिंग्स थी. Some Sufi sects adopted sama, that is singing, and raqs, that is dancing, as a means of invoking God. So कुछ जो सूफी सेक्शंस थे वो डांसिंग और सिंगिंग के थ्रू भगवान से जुड़ने को वो मानते थे कि डांसिंग और सिंगिंग से अगर हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड समा एंड रक्स, तो भगवान तक आप भगवान तक पहुंच सकते हैं. द सूफी मास्टर्स नोन एज पीर्स held their assemblies in their khangas or hospices. तो जितने भी सूफी मास्टर्स थे जो टीचिंग्स स्प्रेड किया करते थे ऑफ द सूफी मूवमेंट, जिनको पीर्स कहा जाता था, they were known as पीर्स. वो ऐसी मीटिंग्स रखा करते थे जहाँ पर अपने डिसाइपल्स, अपने फॉलोअर्स को बुलाकर वो लोग प्रीच किया करते थे, उनको भगवान से सही गाइडेंस प्रोवाइड करते थे टू अटेन गॉड. एंड जहाँ पर ये असेंबलीज होती थी उन्हें खानगाज या फिर हॉस्पिसेस कहा जाता था. द डिसाइपल्स वर कॉल्ड मुरीद्स. जो उनके फॉलोअर्स थे उनको मुरीद्स कहा जाता था. दे लिव्ड इन द खानगाज अलॉन्ग विथ फेलो डिसाइपल्स एंड द पीर हिमसेल्फ, राइट. सो जो डिसाइपल्स थे वो खानगाज में रहते थे पीर के साथ, और बाकी सारे जितने डिसाइपल्स थे ये लोग सब एक साथ रहा करते थे इन द खानगाज. Devotees from all sections of the society, including members of the royalty and nobility, visited these khangas. So जितने भी different religions के लोग हैं, different sections हैं जो society के, सबसे devotees यहाँ पर आते थे. and जो royal members हैं, nobles हैं, जो उस टाइम जो ruling class थी, वो सब लोग भी खानगा पर visit किया करते थे. When a peer of a khanga died, his grave or dargah would become a center of pilgrimage. जब कोई famous पीर जो होते थे उनकी डेथ होती थी तो जिस जगह पर वो जो उनका खानगा होता था वो दरगाह बन जाता था, बिकेम अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज. उनकी जो ग्रेव या फिर जो दरगाह थी वहाँ पर श्रद्धालु आकर अपनी रिस्पेक्ट पे करते थे, उनकी ब्लेसिंग्स को सीख किया करते थे. द सक्सेशन ऑफ पीर्स वॉज नोन एज सिलसिला और अ रिलीजियस ऑर्डर. सो एक के बाद एक जो पीर्स आते थे, जैसे एक पीर की डेथ हुई उसके बाद जो नेक्स्ट पीर आए उस सक्सेशन में, उन सबको उसको एक सिलसिला कहा जाता था या फिर रिलीजियस ऑर्डर. सैयद हुसैन इन गुलबर्ग, शाह आलम बुखारी इन गुजरात, बहाउद्दीन ज़करिया इन मुल्तान व डिफरेंट इंडियन सूफी सेंट्स. ये सब डिफरेंट इंडियन सूफी सेंट्स थे, राइट. Now, do you know, children, the word Sufism comes from the word Suf, which is a kind of coarse garment worn by the Sufi saints. This woolen rough garment जो वो पहनते हैं उससे ये word Suf निकल कर आया है, and that is how Sufism came into existence. Now let's talk about the Sufi orders.
The Sufis formed orders or silsilas named after their founders. So ये जो silsilas थे, जो religious order थे, वो उनके founder के name पर ही होते थे. There were 12 silsilas by the 13th century. 12 silsilas थे 13th century के start तक. The popular ones were the Chisti, Suhrawardis, then Firdausiya, Kubrawaiya and Kalandariya. So ये जो थे ये popular silsilas थे. The saints lived in a khangaah where all devotees gathered to seek blessings. So जो saints थे, सूफी saints थे, वो खानगाह में रहते थे जहाँ पे उनके सारे disciples और followers उनकी blessings लेने आते थे. People thought that they have miraculous powers and could predict the future. लोगों को ऐसा लगता था, उनका ऐसा मानना था कि ये जो सूफी saints हैं इनके पास miraculous powers हैं, यानी जादुई शक्तियाँ हैं and वो future भी आपको predict कर सकते हैं, बता सकते हैं. Dance and music sessions called sama were also held at the khangas. Khangas पर ये dance और music sessions भी होते थे, which was a way of connecting to God. Sufis believed in one supreme God. जितने भी Sufis थे वो एक भगवान में मानते थे, एक supreme power में मानते थे. They had respect to all religions. They preached to help the poor and needy. वो अब सब religions जो थे वो सबकी respect किया करते थे. सूफी जो saints थे and क्या preach करते थे? To help the poor and the needy. ज़रूरतमंदों की और जो लोग गरीब थे उन सब की हेल्प करने के लिए वो लोगों को प्रोत्साहित करते थे. उनकी टीचिंग्स नीडी एंड पुअर की हेल्प करने के लिए थी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी चिश्ती सिलसिला. द थ्री इंपॉर्टेंट सूफी सेंट्स ऑफ चिश्ती सिलसिला वर मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद एंड निज़ामुद्दीन औलिया. ये मेन जो चिश्ती सेंट्स थे उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट सूफी सेंट्स थे. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वॉज अ ग्रेट सूफी सेंट. मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो बहुत ही एक ग्रेट सूफी सेंट थे. द चिश्ती ऑर्डर वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय हिम. सो चिश्ती ऑर्डर किनके ऊपर नाम रखा गया है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. His दरगाह in Ajmer is a famous center of pilgrimage even today. आज के टाइम पे भी ये बहुत फेमस पिलग्रिमेज सेंटर है. लोग अपनी ब्लेसिंग्स लेने के लिए उस जगह पर जाते हैं. अजमेर की जो दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती की, राइट. द उर्स इज स्टिल हेल्ड देयर एवरी ईयर. उर्स क्या होता है? जो जो सेंट हैं उनकी डेथ एनिवर्सरी एवरी ईयर वहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है. By leading a very simple ascetic way of life and spreading the message of love and equality, he tried to wipe out ill feelings from the minds of people of two communities, that is Hindus and Muslims. तो ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती जो ग्रेट सेंट थे, सूफी सेंट थे, उन्होंने एक बहुत ही सिंपल वे ऑफ लाइफ अपनाया हुआ था. उन्होंने जितने भी वर्ल्डली प्लेजर्स थे उन सबको त्यागा हुआ था, राइट. बहुत सिंपल लाइफ जीते थे और वो क्या मैसेज जनता तक पहुंचाते थे? ऑफ लव एंड इक्वालिटी, कि सबको प्यार करें और हर इंसान इक्वल है. दे आर ऑल इक्वल इन द आइज ऑफ द गॉड. He tried to wipe out ill feelings from the minds of people of two communities. So हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, राइट, उनको भी दूर करने की कोशिश की थी. एंड उनको ये समझाया था दैट किसी भी सब लोग बराबर हैं, सब लोग एक से हैं. किसी के प्रति हमें अपने मन में बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए, इल फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए, राइट. सो ही प्रीच्ड लव एंड इक्वालिटी. नाउ निज़ामुद्दीन औलिया वाज ऑलवेज एट लॉगरहेड्स विद Ghiyasuddin Tughlaq. Loggerheads means he was always at conflict with Ghiyasuddin Tughlaq. The Sufi saint was sent a royal decree by the Sultan to leave Delhi before he returned from Bengal after his victory. The Sufi saint जो निज़ामुद्दीन औलिया थे उनको घियासुद्दीन तुगलक ने एक मैसेज भिजवाया कि उनके बंगाल से आने के पहले वो दिल्ली छोड़कर चले जाएं, राइट. सुल्तान के आने से, सुल्तान घियासुद्दीन तुगलक के बंगाल से जीत कर विक्ट्री पाने के बाद वापस आने से पहले जो निज़ामुद्दीन औलिया हैं उन्हें दिल्ली छोड़ देना चाहिए, ऐसा ऑर्डर उन्होंने किया. हज़रत साहब रिप्लाइड टू द रॉयल ऑर्डर सेइंग हुनुस दिल्ली दूर अस. तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया? ही सेड हुनुस दिल्ली दूर अस, जिसका मतलब था दिल्ली इज स्टिल फार अवे, दिल्ली अभी दूर है. एंड घियासुद्दीन तुगलक नेवर रीच्ड दिल्ली अलाइव. घियासुद्दीन तुगलक दिल्ली तक जिंदा नहीं पहुंच पाए. He was killed on his journey back home allegedly by his own son. ऐसा माना गया है कि उनके ही बेटे ने जब वो वापस आ रहे थे रास्ते में उनकी हत्या कर दी, उनको मार दिया. सो जो हज़रत साहब ने कहा that came to be true.
Nizamuddin Aulia was the most famous of the Chishti saints and disciple of Baba Farid. So Nizamuddin Aulia थे जो सबसे famous थे Chishti order के, and he was a disciple, he was a follower of Baba Farid. His strong personality and mystic ideology made him most popular. उनकी जो personality थी वो काफ़ी strong थी, और जो उनकी भगवान से connect करने की जो ideology थी, it was what made him popular. इसने उन्हें बहुत popular बनाया. He spread the message of universal love and brotherhood. उन्होंने सबसे प्यार करने का मैसेज किया और भाईचारे का प्रमोशन किया. उन्होंने एनकरेज किया लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने के लिए. Many devotees came to his dargah in Delhi every day to seek blessings. आज भी लोग जो हैं उनकी दरगाह में दिल्ली में जो है उनकी blessings लेने के लिए डेली वहाँ आते हैं. Some other famous Chishti saints were Sheikh Salim Chishti, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख नसीरुद्दीन महमूद चिरागे दिल्ली. सो ये सब भी फेमस चिश्ती सेंट्स हैं. राइट नाउ चिल्ड्रन, लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड टू दी सुहरावर्दी सिलसिला. शेख बहाउद्दीन जकरिया वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंट्स ऑफ दी सुहरावर्दी सिलसिला. सबसे जो फेमस सेंट थे वो थे शेख बहाउद्दीन जकरिया. सम ऑफ अदर नोटेबल सेंट्स ऑफ दिस सिलसिला वर शाह आलम बुखारी and Sheikh Shihabuddin Suhrawardi. Right? This is the Dargah of Nizamuddin Aulia and this is Ajmer Sharif. Now let's talk about the Kalandariya Silsila. The members of Kalandariya Silsila were known as Kalandars or wandering saints as they moved from one place to another. So जो Kalandariya Silsila के जो members थे उन्हें Kalandars कहा जाता था या फिर वॉन्डरिंग सेंट्स, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते रहते थे. मोस्ट ऑफ देम शेव देयर हेड्स, मुस्टैशेस, बियर्ड्स एंड आईब्रोज. और अपने हेड को, मुस्टैशेस को, बियर्ड्स को, इवन आईब्रोज तक वो शेव करके रखते थे. सम फेमस सूफी कलंदर्स इंक्लूड दादा हयात कलंदर, हज़रत लाल शाहबाज कलंदर एंड बू अली शाह कलंदर, हज़रत जुल अल नून मिस्री एंड राबिया बसरी कलंदर. ये सब फेमस कलंदर सिलसिला के सेंट्स थे. दिस सिलसिला वाज कन्फाइंड टू अ वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल. बहुत ही कम लोगों के तक सीमित था ये जो ग्रुप था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिंसिपल्स एंड टीचिंग्स ऑफ द सूफीज. जो ये सूफी सेंट्स थे उनके मेन टीचिंग्स क्या थे? God is one and supreme and should be worshipped through love and devotion. So उनका ऐसा मानना था कि भगवान एक हैं और सुप्रीम पावर है. राइट एंड शुड बी worshipped through love and devotion. और उनकी पूजा बहुत ही प्यार से और पूरी शिद्दत से की जानी चाहिए, पूरी डिवोशन से की जानी चाहिए. मेडिटेशन एंड जिक्र इज ऑफ utmost importance. मेडिटेशन मीन्स ध्यान लगाना एंड जिक्र इज चैंटिंग ऑफ गॉड्स नेम. भगवान का नाम लेना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें मानी गई हैं भगवान से कनेक्ट करने के लिए. ऑल रिलीजन्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड. दे टॉट दैट हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए. अ सिंपल लाइफ शुड बी लेड विच शुड बी फ्री ऑफ ग्रीड. एक सिंपल लाइफ जीनी चाहिए जिसमें लालच नहीं होना चाहिए. कंपैशन फॉर द पुअर एंड द नीडी एंड रेडी सेल्फलेस असिस्टेंस टू देम. जो पुअर लोग हैं और जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए मन में दया भाव होना चाहिए. राइट एंड यू शुड ऑलवेज बी रेडी सेल्फलेस असिस्टेंस टू देम. उनको असिस्ट करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए. फॉलो द करेक्ट पाथ शोन बाय अ गुरु. और जो गुरु ने जो रास्ता दिखाया है, सही रास्ता दिखाया है, उसी के ऊपर चलना चाहिए. गुरु हियर मीन्स द पीर और द सूफी सेंट. डिवोशनल म्यूज़िक कैन बी अ पावरफुल मीन्स ऑफ अटेनिंग क्लोजनेस टू गॉड. जो म्यूज़िक है, भगवान की भक्ति भरे जो गीत हैं, राइट, उनसे वो एक ज़रिया है भगवान तक पहुंचने का. एडवोकेटेड एंड प्रैक्टिस्ड पर्टिकुलरली बाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. सो ये जो जो डिवोशनल म्यूज़िक का जो कॉन्सेप्ट था भगवान से कनेक्ट करने का, ये दिया गया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा. राइट, सो दीज वर ऑल द प्रिंसिपल्स एंड टीचिंग्स ऑफ द सूफीज. राइट, so now we are going to begin with the bhakti movement. जो हिंदुइज्म में मूवमेंट थी हिंदुइज्म की. We have already studied that the Nayanars and the Alvars were two religious sects that prospered in the 18th century in South India. So South India की 18th century की बात की जाए अगर, तो नयनार्स और एल्वर्स जो थे वो दो religious sections थे
जो काफ़ी प्रॉस्पर किए, उभर कर आए. द नयनार्स दे वर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा एंड अलवर्स वर डिवोटेड टू लॉर्ड विष्णु. They did not believe in the caste system which was prevalent at that time. और वो लोग caste system जो discrimination पैदा करता है लोगों में, उसमें बिल्कुल believe नहीं करते थे, उसे support नहीं करते थे. These saints came from different backgrounds and castes, including those considered untouchable like the Pulayar and the Panars. So इसके जो saints थे वो different background से belong करते थे. Even untouchable जो इन्होंने एक caste थी, lower caste थी, उससे भी belong करते थे, जिसके example है Pulayar and the Panars. They spread the message of love and brotherhood. According to them, salvation could be attained only through pure and sincere dedication to God. Right? वो क्या preach करते थे? Love and brotherhood. प्यार, दूसरे प्राणियों से प्यार करना और भाईचारे से रहना उनकी एकमात्र चीज़, जो अच्छी चीज़ लोगों को सिखाते थे वो ये थी. एंड उनके अकॉर्डिंग salvation यानी मोक्ष पाने का जो एकमात्र जरिया था वो था प्योर एंड सिंसियर डेडिकेशन टू गॉड. राइट, आप कितने प्योर हैं अपनी फीलिंग्स में और आप कितने डेडिकेटेड हैं टूवर्ड्स योर गॉड. दिस वॉज द ओनली मीन्स टू अटेन गॉड, टू अटेन द सैल्वेशन. They traveled from place to place and sang hymns and bhajans to glorify and praise God. तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, भजन गाते थे भगवान की प्रेज में. Temples were built later at places which were visited by these saints. So ये saints जिस जगह पर visit करते थे उन जगहों पर temples बनाए जाते थे. The Bhakti saints were followers of either the Sagun school, that is believers of God with a form. So ये जो भक्ति saints थे या तो ये सगुण स्कूल को फॉलो करते थे, दैट मीन्स जो लोग मानते थे कि गॉड जो है उनका कोई रूप है, कोई आकार है, और कुछ जो थे वो निर्गुण स्कूल को फॉलो करते थे. दे वर बिलीवर्स ऑफ फॉर्मलेस गॉड, और भक्ति यानी भगवान को वो एक पावर की तरह देखते थे. आइडल वर्शिप यानी किसी रूप के, वो बोलते थे कि भगवान का कोई रूप नहीं है. राइट, तो जितने भी भक्ति सेंट्स थे वो इन दोनों स्कूल से बिलोंग करते थे. कोई इस सगुण स्कूल को बिलोंग करता था एंड सम सेंट्स दे बिलोंग टू निर्गुण स्कूल. क्लियर? नाउ चिल्ड्रन, लेट्स स्टडी अबाउट द भक्ति सेंट्स. सो शंकराचार्य एंड रामानुज were the two important bhakti saints of South India. So South India के बहुत important saints थे शंकराचार्य एंड रामानुज. शंकराचार्य के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. शंकराचार्य was born in Kerala. He was a great philosopher of the 8th century who propounded the philosophy of Advaita, that is non-dualism. So जो शंकराचार्य थे, he was a great philosopher. philosopher क्या होते हैं? जो हमें जीवन के सत्य के बारे में बहुत सारी शिक्षाएं देती हैं, ज़िंदगी के बारे में शिक्षाएं देते हैं. सो ही propounded, he advocated, he encouraged the philosophy of Advaita. Advaita क्या होता है? Non-dualism. That means the oneness of God and human soul as the ultimate reality. कि ultimate reality, ultimate सच क्या है कि जो हमारी जो गॉड है और जो ह्यूमन सोल है वो लास्ट में जाकर एक हो जाते हैं. दैट इज़ द अल्टीमेट रियलिटी. ही बिलीव द वर्ल्ड अराउंड अस टू बी एन इल्यूजन और माया एंड टॉट दैट रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्डली प्लेजर्स एंड अडॉप्टिंग द पाथ ऑफ नॉलेज इज़ द वे टू सैल्वेशन. सो उनका ऐसा मानना था शंकराचार्य जी का कि जो हमारे आसपास की जो दुनिया है ये सिर्फ माया है. राइट, इट इज़ नॉट रियल वर्ल्ड, इट इज़ इल्यूजनल. एंड ही टॉट, उन्होंने सिखाया कि इन सब चीज़ें जो वर्ल्डली चीज़ें हैं इन सब को त्याग कर ही हम मोक्ष पा सकते हैं. ही एस्टैब्लिश 4 मठ्स, दैट आर रिलीजियस स्कूल्स इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया. इंडिया के चारों कॉर्नर में उन्होंने 4 मठ बनाए. ज्योतिर्मठ एट बद्रीनाथ, शरदपीठ एट द्वारका, गोवर्धन मठ एट पुरी एंड श्रृंगेरी मठ इन दी साउथ. तो इंडिया के चारों कोनों में ये उन्होंने रिलीजियस स्कूल्स यानी मठ बनाए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट भक्ति सेंट, रामानुज. रामानुज, born in 11th century in Tamil Nadu, was another devotee of Lord Vishnu. ये लॉर्ड विष्णु के डिवोटी थे और ये तमिलनाडु में इनका बर्थ हुआ था. He was immensely influenced by the Alvars and considered devotion to be the most important. Right, इन पर अलवर्स का बहुत इन्फ्लुएंस था, अलवर्स से बहुत इन्फ्लुएंस थे. एंड जो they considered devotion यानी जो आपकी भक्ति है उसको
बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे डिवोशन टू गॉड. He believed that complete devotion to Lord Vishnu and compassion towards fellow beings were the way to achieve bliss in union with God. अगर आप भगवान से भगवान में लीन होना चाहते हैं, वो bliss चाहते हैं, वो happiness चाहते हैं, तो completely अपने आप को भगवान को devote कर दें, राइट, अपने आप का समर्पण कर दें. एंड जो आपके फेलो बीइंग्स हैं, आपके आसपास जो लोग हैं, उनके प्रति आपके मन में दया भाव होना चाहिए. तो ये ही दो चीज़ें हैं जिससे आप भगवान में लीन हो सकते हैं. His ideologies greatly influenced people in northern India where a new wave of bhakti movement originated. So इनके जो ideologies थे, principles थे, ये नॉर्थ इंडिया तक के लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो गए एंड वहाँ पर एक नई भक्ति मूवमेंट की वेव जो थी, लहर वहाँ पर उठी. Now Basavana, he was another saint born in Karnataka in the 12th century. ये कर्नाटका में पैदा हुए थे in 12th century. He initiated the Virashaiva movement which was against rituals and idol worship. So इन्होंने वीराशैवा मूवमेंट स्टार्ट किया जिसके अकॉर्डिंग आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजन को ये सपोर्ट नहीं करते थे और ये जो रीति रिवाज थे उनको भी ये सपोर्ट नहीं करते थे. He opposed the caste system and Brahmin supremacy and taught that all human beings are equal. ये कास्ट सिस्टम को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे जो डिस्क्रिमिनेशन पैदा करती थी, और जो ब्राह्मण्स जो अपर कास्ट थी, ब्राह्मण्स जो अपने आप को और लोगों से बहुत सुपीरियर मानते थे, उनकी सुप्रीमेसी को भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया. एंड ही प्रीच्ड दैट सारे लोग जो हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, दे आर ऑल इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड. देयर वर मेनी अदर भक्ति सेंट्स दैट इमर्ज्ड इन दिस एरा. The most prominent among them were Janajneshwar, Namdev, Eknath, Ravidas, Shankardeva, Madhavacharya, Nimbarka and Tukaram, as well as कुछ women भी थी जैसे Sakubai and the family of Chokha Mela of Maharashtra. They all promoted the worship of Lord Vishnu. Nathpanthis, Siddhacharas and yogis were some saints who criticized the rituals of traditional religion and promoted social order aided with logical reasoning. ये सब भी कुछ सेंट्स थे जिन्होंने क्रिटिसाइज किया द रिचुअल्स, जो पुराने रीति रिवाज, ट्रेडिशनल रीति रिवाज चलते आए हैं रिलीजन्स में, एंड दे प्रमोटेड सोशल ऑर्डर एडेड विद लॉजिकल रीजनिंग. लोगों को लॉजिकल रीजनिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को चलाने के लिए बोला, इंस्टेड ऑफ जो एज ओल्ड ट्रेडिशंस चलते आए हैं उनके अलावा, मतलब उन्हें दिमाग यूज़ करने के लिए बोला. Tulsidas was born in the 16th century. He is considered to be one of the greatest Hindu poet saints of India. 16th century में इनका बर्थ हुआ तुलसीदास का, और इनको तुलसीदास को one of the greatest Hindu poet saints माना गया है. He wrote the famous रामचरितमानस. उन्होंने जो रामचरितमानस है वो कंपोज की थी. This book is devoted to the life and times of Lord Rama. So लॉर्ड राम के टाइम के बारे में जो बुक लिखी गई थी वो तुलसीदास ने लिखी थी. He is also well known for his हनुमान चालीसा. इन्होंने हनुमान चालीसा भी लिखी है तुलसीदास ने. Now let's talk about another bhakti saint, Surdas. Surdas, the 15th century sightless saint, poet and musician, is known for his devotional songs dedicated to Lord Krishna. So Surdas जो थे वो देख नहीं सकते थे. He was a sightless saint and he was a poet and a musician. और वो किस लिए फेमस थे? फॉर हिज डिवोशनल सॉन्ग्स जो उन्होंने लॉर्ड कृष्णा के प्रेज में लिखे थे, राइट. हिज पोम्स वर कंपाइल्ड बाय हिज फॉलोअर्स इन द फॉर्म ऑफ सूरसागर. उनकी जितनी भी पोम्स थी उनके डिसाइपल्स ने सूरसागर के फॉर्म में कंपाइल की. एंड इट वॉज सूर सरावली ऑल्सो एंड साहित्य लहरी. दिस पोएम कंटिन्यू टू बी वेरी पॉपुलर इवन टुडे. आज के टाइम में भी ये जो पोम्स हैं सूरदास की वो आज भी बहुत फेमस है. Another bhakti saint was Chaitanya. Chaitanya was a bhakti saint who popularized the bhakti movement in Bengal, Assam and Odisha. तो चैतन्य ने बंगाल, असम और उड़ीसा में भक्ति मूवमेंट को पॉपुलराइज किया. He was a devotee of Krishna and taught universal love as the first step towards God, right. तो उनके अकॉर्डिंग अगर आप भगवान के नियर जाना चाहते हैं, भगवान के करीब जाना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो पहला स्टेप है वो है यूनिवर्सल लव, यानी सबसे प्रेम करना, सबसे प्यार करना इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द गॉड. नाउ मीराबाई,
She is one of the most famous of the women भक्ति poets of North India. So women में सबसे famous है North India में जो भक्ति poets थी. She was married to a prince of Mewar in Rajasthan, but she refused to follow the traditional role of a wife. उनकी शादी हुई थी Prince of Mewar से, लेकिन उन्होंने जो एक normal जो एक traditional wife के जो role होते हैं, duties होती हैं, उन्होंने वो निभाने से इनकार कर दिया. She gave up all her luxuries for her devotion to Lord कृष्णा. वो पूरी तरह से लॉर्ड कृष्णा को वो डिवोटेड थी उनकी तरफ, और उन्होंने उनके लिए जितनी भी उनकी लग्जरीज थी, राजपाट था, सब त्याग दिया था. शी sang इन डिवोशन एंड popularized भजन्स रिफ्लेक्टिंग हर लव एंड डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा. सो वो डिवोशन में वो गाती थी, एंड उन्होंने जो भजन्स थे, जितने भी उनके भजन थे, उनके अंदर उनकी डिवोशन, उनकी भक्ति दिखती थी टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा. उनकी तरफ उनका प्यार नज़र आता था. Now let's see teachings of Bhakti saints, यानी जो भक्ति सेंट्स थे वो क्या सिखाते थे. God cannot be reached by rituals, ceremonies, sacrifices or renunciation of the world. So according to भक्ति सेंट्स, जो भगवान हैं वो ये जो पुराने रीति रिवाज हैं, sacrifices हैं, और जो वर्ल्ड को, वर्ल्डली प्लेजर्स को त्याग जो है, उनको त्यागने से भगवान नहीं मिलता है. Purity of heart and mind coupled with selfless love and devotion are the traits through which God's nearness can be achieved. So अगर आप भगवान के करीब जाना चाहते हैं तो आपका जो दिल और दिमाग है वो एकदम प्योर होना चाहिए. coupled with selfless love and devotion, दूसरों के प्रति आपके मन में selfless love होना चाहिए, यानी कोई भी selfish motive नहीं होना चाहिए. एंड भगवान के प्रति जो आपका समर्पण है, आपकी डिवोशन है, वही एक ज़रिया है भगवान के करीब जाने का. They also taught that God did not create castes or religions, hence all people are equal. भगवान ने कोई भी जाति धर्म नहीं बनाए थे, राइट. सो सब लोग जो हैं भगवान की नज़र में एकदम इक्वल हैं. Religious tolerance should be practiced by all, इसलिए सबको सभी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए. Compassion towards fellow beings, यानी अपने जो साथी हैं, अपने जो आसपास के लोग हैं, उन सब के प्रति दया भाव होना चाहिए मन में. Trying to help the needy and lessening their pain is the true essence of bhakti. So भक्ति का जो ट्रू एसेंस है वो है, अगर आप किसी को पीड़ित देखते हैं, किसी परेशानी में देखते हैं, दर्द में देखते हैं, तो उसके दर्द को थोड़ा कम कर दें अगर आप, या फिर किसी नीडी की मदद कर दें. दैट इज़ द ट्रू एसेंस ऑफ भक्ति. Knowledge, which is an integral part of bhakti, can be attained through a टीचर. नॉलेज यानी जो हम विजडम की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक गुरु के द्वारा ही. अगर आपने गुरु धारण नहीं किए हैं तो आपको ट्रू विजडम नहीं अटेन हो सकता. तो अगर आप ट्रू नॉलेज चाहते हैं तो आपको एक गुरु ज़रूर धारण करने चाहिए. डिवोशनल म्यूज़िक कैन एक्सप्रेस अ डिवोटीज़ भक्ति. डिवोशनल म्यूज़िक के थ्रू अपनी भक्ति जाहिर की जा सकती है, राइट. सो दीज आर टीचिंग्स ऑफ भक्ति सेंट्स. सो नाउ चिल्ड्रन, लेट्स सी अ सॉन्ग कंपोज्ड बाय मीराबाई. She says, I have found a guru in Raidas. He has given me the pill of knowledge. She says, मुझे रायदास में अपने गुरु मिल गए हैं और उन्होंने मुझे spiritual wisdom provide किया है. I lost the honor of the royal family. I went astray with the sadhus. She says, I have lost the approval of my family members, of my royal family members. And she says, I went astray with the sadhus means she has renounced all the worldly pursuits. I constantly rise up, go to God's temple and dance, snapping my fingers. She says, मैं constantly, इतना जो मुझे, oppose किया जा रहा है, इतनी opposition के बावजूद मैं फिर भी रोज़ उठती हूँ, रोज़ मंदिर जाती हूँ. And I dance, वो डांस करती हैं. Snapping my fingers means, snapping fingers symbolizes joy and surrender towards her God. I don't follow the norms as an oldest daughter-in-law. मतलब वो एक बड़ी बहू होने के कोई भी norms follow नहीं करती हैं. I have thrown away the veil. That shows, it symbolizes defiance, right? It symbolizes that she has she defies all these societal restrictions and constraints. I have taken refuge with the great Guru and snapped my fingers at the consequences, right? And now she says that she snapping fingers again at the consequences. She has taken refuge with the great Guru means she had got guidance from her Guru, and now she snaps her fingers in defiance, and it shows that she is confident in her religious path, in her spiritual path,
right? So this was a song composed by Mirabai. So now let's children talk about a famous saint, Kabir Das. Kabir Das was a mystical poet. Mystical poet means जो अपने religious experiences through अपनी religious teachings जो है spiritual teachings through poems आप तक पहुँचाते थे. Philosopher जो ज़िंदगी की सीख देते हैं, and a great saint of India, and he was greatly influenced by the Bhakti movement. There is no clue about the birth or parentage of Kabir Das, but it is considered that he was found of Lahertara, Varanasi. यानी उनके पेरेंट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनकी बर्थ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस इतना पता है कि वो लहरतारा वाराणसी में मिले थे. According to Islam, the meaning of Kabir is the great one. So Islam में कबीर का मतलब होता है the great one. Some of the teachings of Kabir Das have been compiled in Bijak. उनकी जो teachings थी वो बिजाक में, कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर and साखी ग्रंथ में आपको पढ़ने को मिल सकती हैं. Now children, let's move on to ideology of Kabir Das. So उनके क्या principles थे, क्या सिखाते थे वो? According to Kabir, all life is an interplay of two spiritual principles. Interplay means it is a dynamic interaction between two spiritual principles. One is the personal soul, that is known as the जीवात्मा, यानी कि एक इंसान की जो soul है, आत्मा, and the other is God, जो है हमारे परमात्मा. So it is Kabir's view that salvation is the process of bringing into union these two divine entities. तो according to Kabir, मोक्ष क्या है, salvation क्या है? जब ये जो दोनों entities हैं, जीवात्मा और परमात्मा, दोनों एक दूसरे में लीन हो जाती हैं, यानी ये दोनों का जो union है, that is known as the salvation. The social and practical expression of Kabir's philosophy has run through the ages. Ages से उनकी ये philosophy चलती आई है. It represents a blend of Hindu and Muslim कॉन्सेप्ट्स. इसके अंदर उनकी फ़िलॉसफी में हिंदू और मुस्लिम दोनों के ही कॉन्सेप्ट्स का एक अमालगमेशन है, एक ब्लेंड है. ही रिजेक्टेड द ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड वाज अगेंस्ट आइडल वर्शिप. उन्होंने जो ट्रेडिशनल रिचुअल्स थे, रीति रिवाज थे, उनको सपोर्ट नहीं करते थे. एंड ही वाज अगेंस्ट आइडल वर्शिप, मूर्ति की जो मूर्ति पूजन के भी वो अगेंस्ट थे. ही वाज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम भी उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. एंड ही ऑल्सो कंडेम्ड किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड. लोग जो एनिमल्स को मार कर खाते हैं, नॉन वेजिटेरियंस को भी उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया. इट इज़ बिलीव दैट ही रिसीव्ड हिज स्पिरिचुअल इनिशिएशन फ्रॉम रामानंद. सो उनको स्पिरिचुअल पाथ पर किसने डाला था? उनके जो टीचर थे रामानंद, हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द गुरु ऑफ संत कबीर. जो संत कबीर के गुरु माने जाते हैं रामानंद. ओके, उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी थी वो गुरु रामानंद की वजह से थी. Now let's learn about the Kabir's teachings. All the recorded verses of Kabir are in Hindi. उनके जितने भी poems हैं वो हिंदी में हैं. His दोहास called कबीर के दोहे are popular even now. आज के टाइम में भी उनके जो दोहे हैं लिखे हुए वो बहुत popular हैं. His lyrics are characterized by a free use of vernacular language and examples are cited from our day-to-day life. Vernacular language means day-to-day language, very simple language. सो उनके जो लिरिक्स हैं, यानी जो बोल हैं, जो शब्द हैं उनके पोएम्स के, वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे गए हैं. एंड दे आर एग्जाम्पल्स फ्रॉम विच आर साइटेड, विच आर कोटेड फ्रॉम आर डे टू डे लाइफ. हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से एग्जाम्पल्स लेकर ये दोहे लिखे गए हैं. ही एम्फेसाइज द प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर एंड प्रीच्ड अहिंसा. सो उन्होंने क्या प्रीच किया कि आपका कैरेक्टर एकदम प्योर होना चाहिए, साफ होना चाहिए. एंड ही प्रीच्ड नॉन वायलेंस, यानी अहिंसा. He stressed the importance of the guru who he believed guided people along the correct path. उन्होंने भी गुरु का एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान बताया है लाइफ में कि गुरु धारण करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. गुरु जो होते हैं वो हमें सही राह पे गाइड करते हैं. कबीर पंथ इज़ अ लार्ज religious community which identifies Kabir as the originator of the Sant Mat sect. जो संत मत sects होते हैं spiritual, संत मत sects are spiritual movements that focus on the teachings of saints. जो teachings हैं saints की, उन पे focus करते हैं. तो कबीर पंथ एक बहुत ही ऐसी बड़ी community है, religious community है जो identify करती हैं कि कबीर ही उनके originator हैं संत मत sects के.
So Kabir Das is the first Indian saint who coordinated Hinduism and Islam by conceiving and popularizing a universal path which could be followed by both Hindus and Muslims. So Kabir Das एक पहले ऐसे सेंट हैं जिन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला जो हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स दोनों फॉलो कर सकते हैं. सो उनका पहले ऐसे सेंट थे जिन्होंने हिंदुइज़्म और इस्लाम को कोऑर्डिनेट किया और उसे पॉपुलर किया. नाउ डेथ ऑफ कबीर. देयर इज़ अ फेमस लेजेंड अबाउट हिज डेथ. उनकी डेथ के बारे में एक बहुत पुरानी कहानी है. When he died, his Hindu and Muslim followers had a conflict for the last rites. मतलब उनकी डेथ के बाद जो उनके हिंदू फॉलोअर्स थे और जो मुस्लिम फॉलोअर्स थे उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि कौन किस धर्म के अकॉर्डिंग उनके लास्ट राइट्स परफॉर्म किए जाएंगे, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. So when they lifted the cloth covering his body, they found flowers instead. So जब उन्होंने उनका कपड़ा हटाया जिनके नीचे उनकी डेड बॉडी थी तो वहाँ पर क्या मिला उनको? फ्लावर्स मिले इंस्टेड ऑफ दी बॉडी. तो मुस्लिम फॉलोअर्स ने बरी हाफ ऑफ दी फ्लावर्स, जो हाफ फ्लावर्स थे उन्होंने उन्हें बरी कर दिया. एंड द हिंदू क्रीमेटेड देयर हाफ. और हिंदूज़ ने अपने धर्म के अनुसार उनका क्रीमेशन कर दिया जो बाकी के फ्लावर्स थे. In Maghar, his tomb and Samadhi still stand side by side. So in Maghar में उनका जो tomb है यानी जहाँ पर उनको बरी किया गया एंड समाधि जो हिंदुइज़्म के अकॉर्डिंग बनती है still stand side by side. आज भी वो दोनों एक ही साथ हैं. कबीर पंथीज was a group formed by Kabir's followers after his death. So उनकी डेथ के बाद उनके फॉलोअर्स ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था कबीर पंथी. Now these are certain कबीरदास के दोहे. बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर. ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए. So now this is a task for you. Kindly go and try to understand the meaning of these two कबीर के दोहे. आप अपने घर में जो बड़े हैं आपके मे बी ग्रैंड पेरेंट्स उनसे समझने की कोशिश करें. अदरवाइज और यू कैन गो टू दी इंटरनेट एंड फाइंड द मीनिंग ऑफ दीज कबीर के दोहे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर गुरु, गुरु नानक देव. श्री गुरु नानक देव जी was born in 1469 in Talwandi, that is now in Pakistan. He was the founder of Sikhism and the first of the 10 gurus of the Sikhs. So गुरु नानक देव जी को सिखिज़्म का फाउंडर माना जाता है और जो उनके 10 गुरु थे उनमें से सबसे पहले थे. He spent 25 years of his life preaching from place to place. उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल एक जगह से दूसरी जगह सिखिज़्म की प्रीचिंग्स को फैलाने में लगाया. Many of his hymns were composed during this period. उनके जो जो भक्ति के गाने थे, जो उनकी जो पोएम्स थी, they were composed during this period. At the same time, he preached the doctrines of his new religion and mission at the places and centers he visited. तो जहाँ भी वो जाते थे अपने रिलीजन से रिलेटेड जितनी भी उनकी टीचिंग्स थी वो लोगों तक वो संदेश पहुँचाते थे. Since his mystic system almost completely reversed the trends, principles and practices of then prevailing religions, he criticized and rejected virtually all the old beliefs. So उनकी जो टीचिंग्स थी वो उस टाइम पे जो प्रिवलेंट ट्रेडिशंस थे उनके बिल्कुल ऑपोजिट थी. तो उन्होंने ही क्रिटिसाइज्ड एंड रिजेक्टेड उस टाइम पे जो प्रिवलेंट एज ओल्ड ट्रेडिशंस थे, बिलीव्स थे, उनको काफ़ी कंडेम किया, क्रिटिसाइज़ किया. एंड रिचुअल्स जो थे, रीति रिवाज जो थे, एंड हार्मफुल प्रैक्टिसेस एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी में जितनी भी हार्मफुल प्रैक्टिसेस चल रही थी, ही रिजेक्टेड ऑल दोज. नानक डिनाउंस्ड आइडोलेटरी, यानी उन्होंने भी मूर्ति पूजन को उन्होंने डिनाउंस किया. एंड द वर्शिप ऑफ डेमीगॉड्स होते हैं देवताओं का भी पूजन को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया. He initiated and encouraged the langars or the community kitchen, common kitchen, where all people irrespective of their caste sat together and ate from the same kitchen. उन्होंने लंगर शुरू किया जिसे कॉमन किचन कहा जाता था, जहाँ पर हर डिफरेंट कास्ट के रिलीजन के लोग एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे. राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज टीचिंग्स. Guru Nanak Dev taught us that there is one God and He is the truth and ultimate reality. तो उन्होंने सिखाया कि भगवान एक ही है. There is only one God and He is the truth. वो एक सच है और जो अल्टीमेट रियलिटी है. राइट वो सिर्फ एक भगवान है, एक सुप्रीम पावर है. To emphasize this point, he said there is neither Hindu nor Muslim, कि कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, सब एक है.
The chief teachings of Guru Nanak included 3 principles. इनके 3 principles थे basically. नाम जपना और to recite and meditate God's name. First was to भगवान का नाम लेना, यानी to नाम जपना जिसे कहते हैं, भगवान का नाम जप करना. देन कीर्त करना, जिसका मतलब होता है टू डू वंस ड्यूटी बाय ऑनेस्ट मीन्स. आप जो भी काम कर रहे हैं वो फेयर मीन्स से कीजिए, ऑनेस्ट मीन्स से कीजिए. एंड देन इज वंड छकना, दैट मीन्स टू शेयर योर इनकम विद द लेस प्रिविलेज्ड फेलो ह्यूमन्स. जो आपसे जो गरीब हैं, जो नीडी हैं, अपना वंड छकना मीन्स उनका बांट कर खाएं उनके साथ. टू शेयर योर इनकम विद दोज हु आर नीडी. क्लियर? A large number of common people, peasants, artisans, craftsmen and traders were attracted to Guru Nanak's teachings and they became his followers. तो उनकी जो teachings थी इसमें बहुत लोग उनकी तरफ इनकी वजह से अट्रैक्ट हुए, जिनमें peasants थे, artisans थे, craftsmen थे, राइट, और वो उनके followers बन गए. He exhorted people to lead their lives as householders and engage in useful occupations to earn their livelihood. So उन्होंने people को encourage किया to live their lives as householders, यानी गृहस्थ जीवन को support किया उन्होंने. And he encouraged people to engage in useful occupations to earn their livelihood, यानी जो सही रास्तों से पैसा कमाना, उन्होंने उसको प्रीच किया कि गलत रास्ते से कभी भी पैसा नहीं कमाना चाहिए. Now होली बुक ऑफ सिखिज्म, क्या नाम है उसका? गुरु ग्रंथ साहिब. So the Guru Granth Sahib, the holy book of Sikhs, is written in Gurmukhi script. ये गुरमुखी में लिखी गई है, which was developed by Guru Nanak. It is worshipped by the Sikhs and the Sindhis. और ये गुरु ग्रंथ साहिब है, इसको Sikhs पूजा करते हैं इसकी, और Sindhis भी. Every Gurudwara has a Granth Sahib. The holy Granth, popularly known as Adi Granth, contains the hymns of the first 5 gurus. So जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसके अंदर जो पहले 5 गुरु थे, सिख गुरुज, उनके hymns यानी उनके poems लिखे गए हैं. And this Granth is popularly known as Adi Granth. They were all collected, arranged and formed into one volume called Guru Granth Sahib by the 5th Guru. जो 5th Guru थे उन्होंने ये सारे जो hymns थे सारे गुरुज के उनको collect किया और उनको एक जगह पर consolidate किया. It contains a few selections from the hymns of Kabir and other contemporary Vaishnavite saints. और इसके अंदर गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के भी कुछ सेलेक्ट करके उनके हिम्स लिए गए हैं, एंड कुछ जो दूसरे वैष्णवाइट सेंट्स हैं उनके भी कुछ यहाँ पर हिम्स लिए गए हैं. Now successors of Guru Nanak. Guru Nanak was the first guru of Sikhs. He nominated one of his disciples Lehna as his successor, who came to be known as Guru Angad. Right? So उन्होंने गुरु नानक देव जी ने अपने जो डिसाइपल, अपने एक फॉलोवर थे लेहना, उनको अपना सक्सेसर नॉमिनेट किया और इनका आगे जाकर नाम आया गुरु अंगद. There is a tradition of a total of 10 Sikh gurus. Total 10 Sikh gurus थे. First was Guru Nanak, Guru Angad Dev, Guru Amar Das, Guru Ramdas, Guru Arjun Dev, Guru Har Gobind, Guru Har Rai, Guru Har Krishan, Guru Tegh Bahadur and Guru Gobind Singh. These were the 10 Sikh gurus. Guru Gobind Singh founded the Khalsa Panth or Sikh community. So Guru Gobind Singh जी ने खालसा पंथ और सिख कम्युनिटी जो है उसके फाउंडर थे. राइट? सो आई होप आपको ये जो जितनी मूवमेंट्स की हमने बात की, सूफी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट, और जितने ये सेंट्स थे, इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल सेंट्स थे मिडिवल पीरियड के, आई होप यू नाउ हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑल दैट. राइट? सो प्लीज़ गो थ्रू दिस ग्लोसरी एंड वी विल टेक अ क्विक रिव्यू. The important result of the contact between Hinduism and Islam was the emergence of the Bhakti movement among the Hindus and Sufi movement among the Muslims. The founder of Chishti Silsila was Khwaja Moinuddin Chishti. All life is interplay. It is a dynamic interaction between two spiritual principles, soul and God. Guru Nanak Dev was the founder of Sikhism, right? So children, now let's begin with our exercises. Number 1, darken the circle of correct option in OMR sheet. So the first one says, many verses of Kabir Das have been included in the Guru Granth Sahib. Number 2, Basavana was a saint born in Karnataka in the 12th century. Number 3, Guru Nanak Dev was born in 1469 in Talwandi. Number 4, Dash was a sightless saint known for his devotional songs dedicated to Lord Krishna. So who was a sightless saint? Surdas. Number 5,
Guru Nanak Dev was the founder of Sikhism. Clear everyone? Let's move to the next question. Fill in the blanks. Both Surdas and Mirabai were devoted to Lord Krishna. Nizamuddin Aulia was a disciple of Baba Farid. Number 3. The Nainars were devotees of Lord Shiva, and Alwars, they devoted themselves to Lord Vishnu. Right? Number 4. Dash was the first Indian saint who synthesized Hinduism and Islam. So, उनको किसने coordinate किया था अपनी teachings को according to both Hinduism and Islam? It was Kabir. And number 5, Dash was the first Guru of Sikhs. So, first Guru थे Guru Nanak Dev Ji. Right? Next we have true or false. Number 1. Tulsidas has written the Ramcharitmanas in Urdu. No, this is false. Number 2. Sama was the dance and music sessions held at the Khangas. Yes, it is true. Number 3. Guru Gobind Singh founded the Khalsa or the Sikh community. That's true. Number 4. Surdas believed the world around us to be an illusion or maya. No, he did not. It is false. And number 5, the Sufis formed orders or silsilas named after their founder. Yes, it is true. Right? So now these are detailed question and answers, children. Kindly attempt these yourselves. And with this we come to an end of this chapter, children. I hope आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, and I will see you guys in the next chapter. Till then, you all stay blessed and have a very good day. Bye, kids.